didn't solve the sheet, so what you can do, you can take pen and paper, because in the case of the hashing, the question is based upon some mathematical formula, so you should know that the correct value, how you can multiply, divide, remainder, so these things. So Sir, otherwise the the hashing is recording very is easy. on. Now it's up to Okay. you. Okay, so good afternoon, class. So, topic for today's discussion is hashing. So, let's see the first question. So, in the first question, what it is saying? It is saying one hash function is given to you. The hash function is this one. Hk is equal to 3k plus 2 mod 7. And what it is saying? It is saying what will be the content of the table? What will be the content of the table when the following keys? So, these are the keys which is given to us. So keys I am writing here. So the keys are 16, 9, 5, 11 and 8. So these keys are given to us, and what it is saying, the following keys are inserted using the linear probing. So what is linear probing? You already know that it is one of the collision resolution technique. If collision will occur, so we will resolve the collision by using one of its technique is linear probing. So what is the option of this question? What is the correct answer? After The that, we will student discuss the student solution. is replying B is the answer, but very few students replied yet. Rest of the students kindly reply. If you already attempted this question, then you know the answer. What's the correct answer? So just reply fast. So till now we received the answer as B. Okay, so students are saying option B is correct. Okay, so let's see which option is the correct option. And the question is very simple. So see, this I am writing here. So this is the hash function which is given to us. So hash function, it is given 3k plus 2 mod 7. And these are the keys. So keys I am writing here 16, 9, 5, 11 and 8. So see, first of all, what I am doing for these keys, I am writing this particular value 3 times key plus 2. So for the 16 3s are 48 plus 2 means it will be 50. In the similar way, we are writing for the other one also. So it will become 9 3s, it will become 29. Then in the here it will become 17, then 35, and in the similar way here it will become 26. So this is the value of 3k plus 2. After that we have to take the modulus also. So suppose we are taking the modulus for each and every value. So for 50, the remainder, modulus means remainder, so here its value will be 1. For this one 29, it will be 1. For here it will be 3. Then for here it will be 0, because 7 fifths are completely, it will be divided, there should not be any kind of remainder, and in this case it is 5. So as we are getting very fewer response, so first of all, it is clear to everyone that how we are calculating the hash function. What will be the hash function of these keys? जल्दी से बताइए सभी लोग. hk की वैल्यू क्लियर है, किस तरीके से निकाली? एंड आफ्टर दैट क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. Yes, sir. Students are writing yes. ओके, सो देखिए इसके बाद ये गिवन है कि जो हैश टेबल है उसका साइज 7 है. तो इसको देखिए, हम हैश टेबल ये 7 साइज का है, इसमें इंडेक्सेस कर देते हैं 0 1 2 3 4 5 एंड 6. देखिए एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा, इट इज जस्ट द लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन. आप 0 1 2 3 ऊपर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं. सपोज मैंने नीचे से स्टार्ट कर दिया. अब देखिए लीनियर प्रूविंग में क्या करते हैं, तो जब कोलिजन होगा तब हम लीनियर प्रोबिंग में अप्लाई करेंगे और उस कोलिजन को रिजॉल्व करेंगे. तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैंने क्या देखा कि हमारे पास की क्या थी 16. तो 16 की देखिए हैश फंक्शन क्या आ रहा 1. तो मैं 16 को कहां प्लेस कर दूंगा 1 पे, अभी ये खाली है. इसके बाद देखिए क्या होगा, जो नेक्स्ट हमारी की है दैट इज 9. 9 को देखिए कहां आना था 1 पे, बट 1 पे देखिए ऑलरेडी की है. तो अब कोलिजन रिजोल्यूशन के लिए वी विल यूज दी लीनियर प्रोबिंग. तो देखिए लीनियर प्रोबिंग में क्या करते हैं, इसका मैं फार्मूला भी बता दे रहा हूं, ऑल्दो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा. हम एक दूसरा हैश फंक्शन निकालते हैं, सपोज h डैश के, जो कि हो जाता है एच के प्लस आई टाइम्स मॉडुलस एंड जो भी आपको साइज गिवन है, लाइक इन दिस क्वेश्चन वी कैन राइट 7. ठीक है, और जो आई की वैल्यू होगी फर्स्ट टाइम 0 होती है, 1 2 3 अप टू n-1 मींस 6. तो देखिए 0 के लिए तो ऑलरेडी कोलिजन है, तो हम क्या करेंगे, लीनियरली एक एक से इंक्रीज करते चले जाएंगे. तो इसका मतलब देखिए क्या है, तो 9 को कहां पे मैप होना था 1 पे. तो अगर 1 फ्री नहीं है, लाइक इन दिस केस 1 पे वैल्यू ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो हम 1 के बाद इसको इंडेक्स पोजीशन 2 पे चेक करेंगे. अगर 2 फ्री होगा देन वी विल एलोकेट इट, अदरवाइज वी विल कंटिन्यूअसली इंक्रीज अंटिल वी आर नॉट चेकिंग ऑल द वैल्यूज ऑफ अप टू n-1.
ठीक है। तो देखिए इसमें फर्स्ट टाइम मैंने क्या देखा कि भाई 16 जो 9 को प्लेस करना था 1 पे नहीं आ पाएगा क्योंकि 16 था, तो मैंने क्या किया, इसको लीनियर प्रोबिंग लगा दी और आई की वैल्यू रख दी 1। तो आई की वैल्यू 1 रख दी, तो देखिए यहाँ एच डैश के क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एच के, जो अभी तक वैल्यू थी 1 प्लस 1 मॉड 7, तो देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी 2। तो 2 पे अब मैं एलोकेट कर दूंगा 9, ठीक है। तो 2 पे देखिए मैंने एलोकेट कर दिया 9। इसके बाद देखिए 5 को कहां मैप करना था, 5 को कहां प्लेस करना था, 3 पे, इंडेक्स पोजीशन 3। सो दिस इज द इंडेक्स पोजीशन 3, मैंने यहां प्लेस कर दिया है 5। इसके बाद देखिए जो नेक्स्ट है वैल्यू क्या है, 11 है। 11 को कहां पे जाना था, 0 पे, तो 0 फ्री है, तो डायरेक्टली हम एलोकेट कर देंगे विदाउट यूजिंग द लीनियर प्रोबिंग। नेक्स्ट जो 8 है वो 5 पे जाना है, 5 कहां है, ये है, तो यहां मैंने एलोकेट कर दिया 8। तो देखिए इस तरीके से हमारे जो हैश टेबल है वो फिल हो जाएगी और 2 स्लॉट इम्प्टी रहेंगे। तो देखिए अगर मैं ऑप्शन देखूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, 11 से स्टार्ट होना चाहिए एंड देन 11 16 9 एंड 5। सो 11 16 9 एंड 5, उसके बाद एक वैकेंट होना चाहिए 8 एंड वैकेंट। तो देखिए जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। इसमें देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं, तो जल्दी से बताइए समझ में आया। बस ये कैलकुलेशन आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है, इसमें अगर कोई मिस्टेक हो सकती है सिर्फ कैलकुलेशन में हो सकती है। तो जल्दी से बताइए, क्लियर है ये फर्स्ट क्वेश्चन? Student, write yes or no in the chat box quickly. Is it clear to all of you? In case of any doubt, you can write your doubt in the chat box only. Okay, sir. Yes, it is clear. Now you can proceed to the next question. ओके मैम। सो नाउ दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक आपको स्ट्रिंग गिवन है, सपोज लर्निस, एंड व्हाट इट इज सेइंग दैट द हैश टेबल इनिशियल साइज इज गिवन एज 7 एंड एक हैश फंक्शन यहां देखिए इस तरीके से गिवन है दैट ORD ऑफ की, इट इज hash function of that particular key, it is equal to ORD function key minus ORD of character a plus 1। तो देखिए ये ORD फंक्शन क्या कर रहा है, ये आपको गिवन भी है, ये ASCII वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर की या दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर आप एज्यूम कर सकते हैं। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। So we are getting the mixed answer. Few students are saying it's B and some are saying it's C. So let's see what's the right answer is. ओके तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या है, क्योंकि जब भी मिक्स आंसर आ रहा है तो उस क्वेश्चन को सभी को ध्यान से देखना चाहिए। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो हैश फंक्शन गिवन है इसमें देखिए एक ORD फंक्शन को यूज कर रहा। तो देखिए ORD मींस इसमें यहाँ स्पेसिफाई कर दिया है कि इट इज द ASCII वैल्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर की। तो देखिए आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ही बेसिक है, आपको कुछ की ASCII वैल्यू पता होनी चाहिए कि कैपिटल ए की जो ASCII वैल्यू होती है वो 65 होती है, कैपिटल बी की 66, कैपिटल सी की 67। इन द सिमिलर वे कैपिटल जेड अगर आप लेंगे तो ये 90 तक चला जाता है। तो ये कुछ चीजें आपको याद होनी चाहिए, जैसे अगर आप स्मॉल ए की बात करेंगे तो 97 से स्टार्ट होता है, और उसी तरह से आप एक एक बढ़ा के चेक कर सकते हैं कि जो फर्दर कैरेक्टर्स हैं स्मॉल लेटर्स में तो उनका ASCII वैल्यू क्या है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल इस फंक्शन को देखिए, ये फंक्शन क्या कर रहा है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर कैरेक्टर सी होता, ठीक है, मुझे अगर हैश फंक्शन निकालना होता सी का, ऑल्दो सी अभी गिवन नहीं है, दिस इज जस्ट आई एम टेकिंग फॉर द एग्जांपल। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ORD ऑफ सी माइनस ORD ऑफ ए, तो ORD ऑफ ए प्लस 1। तो देखिए ORD ऑफ सी मीन सी की ASCII वैल्यू क्या है 67, इसमें से मैंने क्या कर दिया, जो ए की ASCII वैल्यू है, कैरेक्टर ए की ASCII वैल्यू है, उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया और उसमें देखिए प्लस 1 मैं कर दे रहा हूं। तो देखिए ये वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से 2 + 1 3 आ जाएगा। तो देखिए मैंने क्यों बताया है, ये इसलिए बताया है कि आप ABCD अप टू जेड आपको पता है टोटल 26 कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ, ए को 1 नंबर दे रहा हूँ, बी को 2, सी को 3, डी को 4। इन दी सिमिलर वे जो जेड हो जाएगा उसका नंबर क्या हो जाएगा 26। तो देखिए जो फंक्शन की ये वैल्यू है ये सेम हो जाएगा, जो भी अगर आप इसको नंबरिंग दे देंगे तो जो भी उसकी पोजीशन आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको बार बार हर एक की के लिए सॉल्व नहीं करना पड़ेगा कि ये वैल्यू क्या आएगी, सिंपल सी बात है, जो वैल्यू है उसकी पोजीशन आ जाएगी। अगर आप पोजीशन को 1 से स्टार्ट कर रहे हैं और 26 तक जा रहे हैं, तो मुझे देखिए जो लिखना है, मुझे जो हैश फंक्शन लिखना है वो किसके लिए लिखना है, लर्निस के लिए लिखना है। तो मैं उसको यहां लिख दे रहा हूं LEARNYS, ठीक है। अब मैंने ये लिख दिया है। तो देखिए L किस पोजीशन पे आएगा, तो आप इसको बाद में सॉल्व भी कर लीजिएगा। जो L आता है वो 12 पोजीशन पे आ जाएगा, E 5th पोजीशन पे आएगा, A से तो स्टार्ट ही किया है तो A 1 पोजीशन पे आएगा, R किस पे आ जाएगा 18 पे, N की अगर आप बात करेंगे तो ये 14 पे आ जाएगा, Y इट विल कम एट 25 एंड S की अगर आप बात करेंगे तो ये 19 पे आ जाएगा।
ठीक है, ये आप चेक कर लीजिएगा इसी तरीके से। तो बार बार हर एक की के लिए आपको वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या है, एक मॉडुलस भी लगा है, मॉडुलस 7। तो एल के लिए देखिए क्या आ जाएगा, इसी तरीके से जैसे अभी मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया। तो रिमाइंडर यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ ऑलरेडी 7 से कम है तो ये ऑलरेडी 5 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपका 4। देन नेक्स्ट के केस में कंप्लीटली डिविजिबल आ जाएगा, 0 आ जाएगा। आफ्टर दैट 21 एंड 4 रिमाइंडर एंड हियर इट विल बी 5। तो देखिए ये सबके जो हैश फंक्शन है हर एक कैरेक्टर के मैंने निकाल लिए। और हैश फंक्शन निकालने के बाद मुझे क्या करना पड़ता है, सिंपली प्लेस करना पड़ता है। ठीक है, तो देखिए इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, इसने ये नहीं बोला है कि कोई भी कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक आपको यूज करनी है। तो देखिए इसमें फिलिंग आप किस तरीके से करेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल व्हाट वी आर डूइंग, अगेन मैंने कर दिया है 0 1 2 3 4 5 एंड 6, बिकॉज टोटल 7 है तो इंडेक्सेस मैंने 0 से 6 तक कर दी। अब देखिए मुझे एल को कहां प्लेस करना है, एल को मुझे प्लेस करना है 5 पे। तो 5 पोजीशन खाली है तो डायरेक्टली मैंने एल को यहां प्लेस कर दिया। अब देखिए ई को कहां प्लेस करना है, 5 पे। तो 5 तो ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो इसलिए मैं इस केस में ई को प्लेस नहीं कर पाऊंगा। और ये क्रॉस का मतलब है कि यहाँ आपका एक कोलिजन हो रहा है। ठीक है, यहाँ कोलिजन अगर रिजोल्यूशन टेक्निक गिवन होती, इन दैट केस वी विल अप्लाई दैट पर्टिकुलर टेक्निक। अदरवाइज सिंपल सा हम कह देंगे कि ई को प्लेस नहीं कर पाएंगे। ए देखिए कहां जाएगा, ए जाएगा 1 पे। तो ए कहां जा रहा 1 पे, तो ए को मैंने यहां रख दिया। आर कहां जा रहा 4 पे, तो यहां मैंने आर रख दिया। आफ्टर दैट एन 0 पे जा रहा, कोई दिक्कत नहीं, फ्री है। वाई कहां जा रहा 4 पे, तो आप यहां देख सकते हैं वाई 4 पे जाएगा, तो ये फिर से एक कोलिजन और हो जाएगा वाई के लिए। और एस देखिए कहां जाएगा 5 पे, तो ये भी पढ़ नहीं पाएगा। तो देखिए कितनी कीज हैं जो कोलिजन कर रही है, तो 3 कीज हो गई। एक आपकी ई हो गई, ई कौन सी थी, ये वाली थी। एक आपकी ई हो गई, एक आपकी वाई हो गई, और एक आपकी एस हो गई। सो करेक्ट आंसर इज 3, कि 3 कीज लीड्स टू दी कोलिजन। तो क्लियर है सभी को, जल्दी से बताइए। Yes, sir, it's clear. ओके, यहां देखिए ध्यान रखिएगा, जब तक कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक ना बोली जाए तो आपको अप्लाई नहीं करनी है। ठीक है, इसके बाद इसी पैटर्न के बेसिस पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है, जल्दी से बताइए। Sir, so this time again we are getting the mixed sort of answers. Some students are saying C, some are saying A. Students, please reply fast. Only few बच्चे देखिए, reply. हाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा, ये हैशिंग बहुत ही इजी टॉपिक है। अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही, देखिए क्या होता है कि इन केस अगर आप टफ में कुछ गलती कर रहे हैं देन इट इज ओके, बट अगर आप इजी पोर्शन को नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कंफ्यूजन है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट। एटलीस्ट जो इजी वाला पार्ट है हम उसमें कोई भी मिस्टेक ना करें। और जैसा मैंने बताया है कि इसमें सिर्फ मैथमेटिक्स है, अगर आप कैलकुलेशन सही करेंगे तो हर एक क्वेश्चन का आंसर आप सही ही गेट करेंगे। तो लेट्स सी। तो जैसा देखिए बताया गया है कि ऑलरेडी ये क्वेश्चन है प्रीवियस वाले क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड। एंड प्रीवियस क्वेश्चन में मैंने अभी आपको बताया था कि जो लर्निस है इसके हैश फंक्शन क्या आ रहे थे, तो 551 4045। सो यू कैन सी सेम चीज मैंने यहाँ लिख दी, 5514 देन 045। ये हैश फंक्शन ऑलरेडी मैंने निकाल चुका है। अब देखिए यहाँ बोल रहा है if we are using the linear probing for resolve the collision, so now if any collision will take place, so we can use the linear probing। and linear probing में क्या करते हैं, अगर उस पोजीशन फ्री नहीं है, वो पर्टिकुलर पोजीशन जहां में की को प्लेस करना है, if it is not free, so हम लोग उसमें एक एक से इंक्रीज करके नेक्स्ट फ्री स्लॉट सर्च करते हैं। एंड जैसे ही नेक्स्ट फ्री स्लॉट मिलेगा तो उसमें हम कीज को अपनी इंसर्ट कर देते हैं। तो चलिए फिर से इसको देख लें किस तरीके से होगा। तो 0 1 2 3 4 5 एंड 6। अब देखिए क्या पूछ रहा है, फाइंड आउट द नंबर ऑफ कोलिजन व्हेन y एंड s आर अटेम्प्ट टू बी इंसर्टेड। तो सबसे पहले तो सीक्वेंस में इंसर्ट होगा। तो देखिए l को मैंने क्या कर दिया 5 पे, तो देखिए l 5 पे क्या आ गया l। अब देखिए e को कहां करना था 5 पे, बट 5 वैकेंट है, तो जैसा मैंने अभी बताया कि आप इसको 6 पे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट फ्री स्लॉट पे, तो e आपका यहां आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्या होगा, जो a होगा वो कहां आपको प्लेस करना है 1 पे, तो a को मैंने यहां प्लेस कर दिया। अब मुझसे पूछा किसके लिए गया है, y और s के लिए, तो उससे पहले मैं करता जा रहा हूं, y और s पे हम लोग देखेंगे। a हो गया, देन r 4 पे करना है, सो वी आर इंसर्टिंग r हियर एट 4 एंड वी शुड प्लेस एट 0
सो n यहां आ गया। अब y के लिए देखिएगा ध्यान से सभी लोग। अब देखिए y के केस में क्या हो रहा है, y प्लेस तो करना था 4 पे, बट 4 वैकेंट नहीं है। तो 4 वैकेंट नहीं है तो मैंने क्या बोला था, हम एक एक से बढ़ाते जाएंगे, नेक्स्ट फ्री लोकेशन चेक करेंगे। 5 भी वैकेंट नहीं है, 6 भी वैकेंट नहीं है। अब 6 के बाद 7 पे नहीं चेक करना है, बिकॉज लास्ट में एक मॉडुलस लगा रहता है। जो भी लीनियर प्रोबिंग में हम एच डैश के निकालते हैं, ये होता है एच के प्लस आई, और लास्ट में एक मॉडुलस विद साइज होता है। अगर इस क्वेश्चन की बात करें 7, तो आपको 6 के बाद यहां से चेक करना है 0 पे। तो 0 फ्री है नहीं है, 1 फ्री है नहीं है, तो देखिए 2 फ्री है, तो मैं y को यहां प्लेस करूंगा। अब देखिए y को प्लेस करने से पहले, ठीक है, y यहां आया है तो मुझे निकालना है नंबर ऑफ कोलिजन। तो देखिए नंबर ऑफ कोलिजन एक तो था 4 पे, देन 5 पे, 6 पे, तो 3 यहां से हो गए, 4 एंड 5। तो y के लिए तो भैया आ गया कि y के लिए जो कोलिजन हो गए हमारे वो 5 हो गए। अब s के लिए देखिए कितने हैं, तो s में देखिए कहां प्लेस करना था, 5 पे। तो 5 पे s के लिए भी देखिए पहला कोलिजन हो जाएगा, दूसरा कोलिजन, देन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है, क्योंकि अब y भी प्लेस हो चुका है। और फिफ्थ कोलिजन के बाद हम s को प्लेस कहां करेंगे, s को हम लोग प्लेस यहां करेंगे। तो देखिए जो दोनों के लिए कोलिजन आ रहे हैं दैट इज इक्वल इन दिस केस, एंड इट इज 5 एंड 5। तो जल्दी से बताइए क्लियर है सभी को? Students quickly write yes or clear. Yes sir, it's clear to the students. ओके, किसी का यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई भी क्वेश्चन? No sir, not yet. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जल्दी से बताइए, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर जल्दी से बताइए। आंसर क्या आ रहा है आपका, जल्दी से बता दीजिए सभी Students, लोग। write your answers in the chat box. Sir, student is right A. Okay, students are saying find out the total number of collisions, so it is A. Okay, and ma'am, how many responses we are getting? Sir, not so many, but approximately 10 to 15 students are replied, and they says A is the answer. Okay, and what is our total strength now? Approximately sir 79 right now. ओके ओके, तो काफी कम बच्चे रिस्पॉन्ड दे रहे हैं और क्वेश्चन काफी इजी है। तो देखिए यहाँ गिवन है हैश फंक्शन इज k प्लस 1 मॉड 10। तो देखिए मॉडुलस 10 सबसे इजी होता है, मुझे बस यूनिट प्लेस की जो वैल्यू है वो देखनी है। तो देखिए 23 है, 23 प्लस 1 क्या हो जाएगा 24, और उसके बाद जब मॉडुलस ले लेंगे तो आपका आ जाएगा 4। इन द सिमिलर वे 21 प्लस 1 2, और 2 का जब आप 22 हो जाएगा, 22 का मॉडुलस लेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या है 2। इसी तरह देखिए इन द सिमिलर वे यहाँ 8 आ जाएगा, हियर इट विल बी 4, हियर इट इज 0, हियर इट इज 7, हियर इट इज 3 एंड हियर इट इज 5। ठीक है, तो ये आ जाएगा। तो एक बार वैल्यू चेक कर लीजिएगा, जैसे मैंने बताया कि इसमें अगर कहीं मिस्टेक हो सकती है तो सिर्फ ये कैलकुलेशन में ही हो सकती है। तो ये हैश फंक्शन आ गया। अब देखिए टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कोलिजन मींस आपको देखना है कितनी सेम वैल्यू है। तो देखिए ये तो ऑलरेडी प्लेस हो गया होता, फॉर एग्जाम्पल जैसे आप यहाँ हैश टेबल भी बना लें 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो देखिए 23 कहाँ जाएगा 4 पे, तो 23 आपने यहाँ प्लेस कर दिया। इसके बाद देखिए ये 21 को कहाँ जाना था 2 पे, तो 2 आप कर देंगे फ्री। ओके, या 47 शुड बी प्लेस्ड एट 8, फ्री है। तो देखिए यहाँ जो यही वैल्यू है 4 वाली, ठीक है, यही एक सेम आ रही, बाकी सारी तो डिस्टिंक्ट है। तो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन कितने हो जाएंगे, सिर्फ 1। ओके, ओनली 1 कोलिजन विल बी देयर। ठीक है, सो दिस इज क्लियर टू एवरीवन, इसका जो आंसर है ये 1 आ जाएगा। सो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इज 1। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसीलिए आई एम नॉट फिलिंग ऑल दी वैल्यू, बिकॉज में सिर्फ एक ही वैल्यू है जो रिपीट हो रही है। सो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इज 1। So students quickly reply, it is clear to all of you. Yes sir, it is clear to the students. Okay, so yeah, so now this is a good question. तो इसका बताइए सभी लोग, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। क्वेश्चन में एक आपको हैश फंक्शन गिवन है hk इक्वल टू k प्लस 1 मॉड 10, कीज आपको गिवन है, एंड व्हाट द क्वेश्चन इज सेइंग, जैसा आपको पता होगा कि ओपन एड्रेसिंग के केस में वी आर हैविंग 3 कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक, लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एंड डबल हैशिंग। तो ये पूछ रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ कोलिजन किस टेक्निक में होंगे, ठीक है, और जो डबल हैशिंग है उसके लिए आपको सेकंड हैश फंक्शन इज आल्सो गिवन k माइनस 2 मॉड 10। तो जल्दी से बताइए। The students are saying C or D. Again, mixed sort of answers. You are saying C and you are saying D is the answer.
ओके, सो मिक्स आंसर। सो अगेन सी, सो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि व्हेनेवर वी आर हैविंग मॉडुलस 10, तो इसका हैश फंक्शन कैलकुलेट करना बहुत ही इजी रहता है। कीज गिवन है, इसमें 1 से ऐड करिए और जो भी यूनिट प्लेस पे वैल्यू आएगी उसको आप ले लीजिए। तो लाइक 46 के लिए दिस विल बी दी 47, या सॉरी जस्ट अ मिनट यार, इट विल बी, या इट विल बी 3, okay, because sorry, 47 and 47 mod 10 means unit place पे 7, then here it will be 3 and here it will be 5. So please once check the calculation। तो देखिए ये अगर कीज गिवन है तो आपको क्या करना है, इन कीज में 1 1 से ऐड करना है एंड यू हैव टू टेक द मॉडुलस विद 10। तो जब आप देखिए मॉडुलस लेंगे तो ये आ जाएगा लाइक 4 2 8 4 0 7 3 एंड 5। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको हैश फंक्शन निकालना है, ठीक है, दिस इज द मैथमेटिकल इक्वेशन। तो इसमें आपको बस ये स्टेप ध्यान से देखना है। इसके बाद देखिए पूछा है कि लीनियर प्रोबिंग, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग एंड डबल हैशिंग अप्लाई करनी है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखेंगे लीनियर प्रोबिंग को अप्लाई करके। तो देखिए लीनियर प्रोबिंग में क्या होता है, जैसा मैंने बताया एच डैश के हम लोग निकालते हैं, दैट इज इक्वल टू एच के प्लस आई टाइम्स मॉडुलस विद जो भी साइज है, लाइक इन दिस क्वेश्चन 10 है, ठीक है, और आई की वैल्यू कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीज करते जाएंगे जब भी कोलिजन मिलेगा। तो देखिए 23 को कहां प्लेस करना था, सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सो 23 को प्लेस करना था 4 पे, सो 4, सो हियर आई एम प्लेसिंग 23। देन 21 को कहां करना था 2 पे, सो यहां 21 आ गया। देन 47 को 8 पे, सो यहाँ 47 आ गया। देन 44 को सॉरी 43 को कहां प्लेस करना था, 4 पे। तो यहां देखिए इस वाले को ध्यान से देखिएगा, 43 को मुझे प्लेस करना था 4 पे, बट देखिए 4 पे क्या है, ये कोलिजन हो जाएगा, तो जो नेक्स्ट फ्री लोकेशन है क्या हो जाएगी 5, तो मैं यहाँ इसको प्लेस कर दूंगा 43 को। देन 79 को कहां प्लेस करना है, 0 पे, 0 फ्री है। देन 46 को कहां प्लेस करना है, 7 में, तो 46 को यहां प्लेस कर दिया, ठीक है। इसके बाद 54 सॉरी वन मोर इज देयर 72, सो 72 को कहां प्लेस करना था 3 पे, तो 72 को मैंने यहां प्लेस कर दिया 3 पे एंड आफ्टर दैट 54 को 5 पे। सो देखिए 54 यहां नहीं जाएगा तो यहां एक कोलिजन हो जाएगा, तो 54 को हम यहां प्लेस कर देंगे नेक्स्ट पोजीशन पे। सो 54 को वी आर प्लेसिंग हियर, ओके, एट इंडेक्स पोजीशन 6। तो देखिए यहाँ कोलिजन कितने आ रहे हैं, यहाँ 2 आ रहे हैं। एक बार जब आप इसको यहाँ प्लेस करना चाह रहे थे 4 वाले पे, और जब आप दूसरे वाले 54 को 5 पे प्लेस करना चाह रहे थे, तो इसमें जो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन है वो मैंने यहाँ लिख लिए, कितने आ जाएंगे 2। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताइए क्लियर है, तो ये हमारी टेबल बन जाएगी बाय यूजिंग दी लीनियर प्रोबिंग। तो जल्दी से बताइए क्लियर है। Yes, sir, it is clear. ओके, अब देखिए क्या पूछा है, क्वाड्रेटिक प्रोबिंग, ठीक है। तो देखिए क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में जो हम हैश फंक्शन यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे जैसा आपको क्लास में बताया गया है, ठीक है, दैट इज एच के प्लस आई स्क्वायर मॉडुलस 10, ओके, ये हैश फंक्शन यूज करेंगे। तो जब भी अब कोलिजन होगा तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आई की वैल्यू अगर 1 रखेंगे तो 1 + 1 ये हो जाएगा 2, ओके, दैट वी विल सी। तो उस पर्टिकुलर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम अब इसको प्लेस करेंगे। ये हमारा फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक प्रोबिंग के लिए। तो देखिए क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में वन स्टूडेंट इज सेइंग कि लास्ट क्वेश्चन में भी 2 कोलिजन्स होते हैं इस केस में। लास्ट क्वेश्चन मींस प्रीवियस क्वेश्चन और दिस वन, दिस टेबल। Ankit, are you talking about the last question? Sir, previous question. Okay, previous question. Okay, so इन दिस क्वेश्चन, हाँ जी बच्चे बताइए क्या इसमें है, 2 कोलिजन कहाँ से हो रहे हैं। So 2 students are asking the same doubt. They said कि इस वाले question में 2 collisions होते हैं. Can we reevaluate all the values again? ओके, तो चलिए इसमें डाउट है तो देखिए मैं फिर से इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कीज आपको गिवन है, फंक्शन इज k + 1 mod 10। तो देखिए 23 + 1 क्या हो जाएगा 24 का मॉडुलस ले लेंगे तो यूनिट प्लेस पे क्या है 4 आ जाएगा। इन द सिमिलर वे 21 के लिए 2 आ जाएगा, 47 के लिए 8,
43 के लिए 4, 79 के लिए 0, 46 के लिए 7, 72 के लिए 3 एंड 54 के लिए 5। पहले बताइए ये वैल्यूज क्लियर है? इस वैल्यूज में कोई डाउट है कि इन कीज का हैश फंक्शन ये होगा? इसमें किसी को डाउट है? यस सर, इट्स क्लियर। इट्स क्लियर। अब देखिए पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ कोलिजन, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ कोलिजन के लिए मैं इसको प्लेस कर रहा हूं, पूरा ही मैं ड्रॉ कर दे रहा हूं, ठीक है। तो देखिए 43 को कहां प्लेस करना था? 4 पे। 23 को कहां प्लेस करना था? 4 पे, मैंने कर दिया। इसके बाद 21 को कहां प्लेस करना है? 2 पे, तो यहां कर दिया 21। देन 21 भी हो गया। 47 को कहां प्लेस करना है? 8 पे, तो यहां कर दिया। अभी तक देखिए कोई कोलिजन नहीं है। देन 43 को मुझे कहां प्लेस करना था? 4 पे। तो जैसा मैंने बताया है कि आप लोग देखिए मिस्टेक क्या कर रहे हैं, यहां कोई कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक नहीं गिवन है, तो सिंपली वी विल से कि 43 इस टेबल में प्लेस नहीं होगा, ठीक है। यहां ध्यान रखिएगा 43 प्लेस नहीं होगा। अगर लिखा होता लीनियर प्रोबिंग तो हम 43 को यहां प्लेस करते, फिर ये 5 के साथ जो 54 है इसके साथ कोलिजन होता। बट इन दिस क्वेश्चन इट इज नॉट रिटन दैट यू हैव टू रिजॉल्व द कोलिजन बाय यूजिंग एनी ऑफ द कोलिजन रेजोल्यूशन टेक्निक। तो यहां मैं 43 को इसमें प्लेस नहीं करूंगा। देन 79 को देखिए कहां प्लेस कर देंगे? 0 पे। 46 को कहां प्लेस कर देंगे? 7 पे। देन 72 को 3 पे एंड 54 को 5 पे, ठीक है। तो जो आपका डाउट आया होगा आई गेस इससे आया होगा, क्योंकि आप लोगों ने 43 को यहां प्लेस कर दिया होगा। बट if it is not given that you have to resolve the collision, so in that case 43 I will not insert into the hash table. ये क्लियर है आप सभी को? यस सर, इट्स क्लियर टू हिम। नाउ वी कैन प्रोसीड। ओके, तो देखिए ये पार्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे बाय यूजिंग दी क्वाड्रेटिक प्रोबिंग। तो क्वाड्रेटिक प्रोबिंग में देखिए कोलिजन होगा तो मैं क्या करूंगा? वैल्यू ऑफ आई को बढ़ाता रहूंगा, आई इक्वल टू 0 1 2 3, और ये फॉर्मूला यूज करूंगा आई प्लस आई स्क्वायर। तो देखिए अब क्या होगा, मैं कीज को 1 बाय 1 ले रहा हूं। 23 को कहा जाना है? 4 पे, सो 23 तो यहां आ गया। देन 21 को कहा जाना है? 2 पे, सो यहां मैंने 21 प्लेस कर दिया। 47 शुड बी प्लेस्ड एट 8, सो 47 को यहां प्लेस कर दिया। 43 इट शुड बी प्लेस्ड एट 4। अब देखिए यहां वाला, ये ध्यान से देखिए 43 आया, इसको जाना था 4 पे, बट देखिए 4 पे क्या है? ऑलरेडी ऑक्युपाइड है। तो अब मैं क्या करूंगा? हैश फंक्शन, ये जो दूसरा हैश फंक्शन है वो निकालूंगा। तो इसके लिए जो 43 का अभी तक हैश फंक्शन था क्या था? 4 प्लस आई की वैल्यू मैं रख दूंगा 1, सो इट विल बी 1 प्लस 1 स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? 6 mod 10, एंड 6 mod 10 मींस 6। तो देखिए इसको मैं डायरेक्टली प्लेस करूंगा यहां पे, ये वाला ध्यान से देखिएगा। स्टेप 43 को डायरेक्टली मैं कहां प्लेस कर दूंगा? 6 पे, ठीक है, क्योंकि 6 इंडेक्स पोजीशन वैकेंट है। इसके बाद 79 को कहा करना है? 0 पे, 0 पे कर दिया। देन 46 को कहा करना है? 7 पे, सो 46 शुड बी हियर। देन 72 इट शुड बी प्लेस्ड एट 3, 3 भी वैकेंट है, तो 72। देन 54, यस 54 शुड बी प्लेस्ड इन 5 एंड 5 इज स्टिल वैकेंट। तो यहां आप देख सकते हैं यहां कोलिजन जो मेरा हुआ सिर्फ एक हुआ, सो टोटल नंबर ऑफ कोलिजन हियर इट इज 1। ये क्लियर है? 1 कैसे हुआ? ये टेबल क्लियर है? कैसे फिल हुई जल्दी से बताइए। Student, right? It is clear to all of you. I received only 4 or 5. Yes, quickly write yes or clear. Yes, sir, it's clear. Okay, so now see we are drawing the third table, and we will see now in this case what will be the total number of collision. So in this case what we will do, we will use the double hashing to resolve the collision, ठीक है। So first of all here I am writing the indexes 3 4 5 6 7 8 9, एंड देखिए डबल हैशिंग के केस में जो h डैश के हम लोग निकालेंगे, जो नया हैश फंक्शन निकालेंगे वो क्या होता है? वो होता है h1 के मींस जो ओरिजिनल हैश फंक्शन गिवन है प्लस i टाइम्स h2 के, ठीक है, एंड जो भी बाहर मॉड लगाए लाइक इन दिस क्वेश्चन मॉडुलस 10। तो चलिए अब इससे हम लोग प्लेस करते हैं। तो देखिए 23 को कहां प्लेस करना था? 4 पे, तो 23 को मैंने कर दिया 4 पे प्लेस, सो 23 को मैंने यहां कर दिया 4 पे प्लेस। आफ्टर दैट 21 को 2 पे करना है, 2 अभी वैकेंट है, तो सेकंड हैश फंक्शन जो डबल हैशिंग का दूसरा हैश फंक्शन है वो यूज नहीं करेंगे, कोलिजन के केस में यूज करना है, सो यहां प्लेस कर दिया 21। 47 इट शुड बी मैप्ड एट 8, सो 47 को 8 पे प्लेस कर दिया। देन 43 को 4 पे, सो देखिए 43 के लिए फिर से देखिए 4 पे करना था, ठीक है, बट देखिए क्या है 4 पे जो है
43 इट शुड बी प्लेस्ड एट 4। सो देखिए 4 पे कोलिजन है, तो यहां मैं दूसरा हैश फंक्शन निकालूंगा। तो दूसरा हैश फंक्शन निकालने के लिए मुझे h2k की जरूरत पड़ेगी, h2k। सो h2k मींस h2 ऑफ दिस 43। सो देखिए 43 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 43 माइनस 2 मॉड 10। सो ये कितना आ जाएगा, ये जो सेकंड हैश फंक्शन की वैल्यू है ये आ जाएगी 1 मॉड 10 मींस 1। ठीक है, ये जो सेकंड हैश फंक्शन की वैल्यू है ये आ जाएगी 1। तो 1 आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 4। पहला हैश फंक्शन से क्या निकाला था आपने 4, सेकंड हैश फंक्शन से आपने क्या निकाला है 1, तो आपने मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 1। सो 1 मल्टीप्लाई 1 मॉड 10। सो दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 5। सो ये देखिए हम लोग कहां प्लेस करेंगे, इसको अभी हमने प्लेस कर दिया, जो ये 43 है 43 को हम लोग प्लेस कर देंगे 5 पे। सो 43 हमारा यहां प्लेस हो जाएगा। तो पहले बताइए यहां तक क्लियर है, इसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। ये 43 को मैं 5 पे क्यों प्लेस कर रहा हूं, क्लियर है सबको? क्लियर है? यस सर, इट्स क्लियर। ओके। इसके बाद देखिए जो 79 है वो कहां जाना चाहिए था, सर वन 0 ऑफ पे। द स्टूडेंट इज सेइंग टू रिपीट। ओके रिपीट, हाँ देखिए आपने सही समय पे पूछ लिया। तो देखिए फिर से मैं इसको रिपीट कर दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा इस पर्टिकुलर टेबल को, हाउ वी आर इंसर्टिंग। तो देखिए सबसे पहले मैंने 23 को पिक किया, 23 कहां जाना था 4 पे। तो देखिए इनिशियली, और जस्ट ए मिनट आई एम रिमूविंग इट and it will be more clear to you because we have to insert in the sequence. Yeah, now see for 23 को कहां जाना है 4 पे, तो मैंने यहां कर दिया 23। ध्यान से देखिएगा 21 का हैश फंक्शन आपने क्या निकाला था 2, तो यहां इसको 2 पे प्लेस कर दिया। आफ्टर दैट 47 को कहां जाना है 8 पे, 8 भी अभी फ्री है, तो यहां मैंने 47 को प्लेस कर दिया। अब देखिए 43 के लिए ध्यान से देखिएगा, 43 को कहां जाना था 4 पे, बट ये थर्ड टेक्निक है। थर्ड टेक्निक कौन सी है, डबल हैशिंग। ये देखिए गिवन है क्वेश्चन में डबल हैशिंग। सो इन द केस ऑफ द डबल हैशिंग इफ कोलिजन अकर, सो वी आर कैलकुलेटिंग ए न्यू हैश फंक्शन, जो कि क्या हो जाता है फर्स्ट हैश फंक्शन प्लस आई टाइम्स सेकंड हैश फंक्शन। तो देखिए 43 के लिए मैंने पहले सेकंड हैश फंक्शन निकाला है कि इसकी वैल्यू क्या है, तो हो जाएगा 43 माइनस 2, 43 माइनस 2 मींस 41, 41 मॉड 10 मींस 1। तो सेकंड हैश फंक्शन की वैल्यू क्या है 1। अब मैं फार्मूला में रखूंगा और आई की वैल्यू को इंक्रीज करूंगा जब तक मुझे फ्री लोकेशन नहीं मिले। तो देखिए h1 के क्या था 4, फर्स्ट हैश फंक्शन इसका क्या था आपने यहाँ कैलकुलेट किया, इट इज इक्वल टू 4 प्लस 1, आई की वैल्यू रखी है 1 एंड सेकंड हैश फंक्शन क्या है 1। तो 4 प्लस 1 इंटू 1 मीन्स 5। सो 5 मॉड 10, मैं देखूंगा भाई पोजीशन 5 वैकेंट है, यस इट इज वैकेंट, तो इस पोजीशन पे मैं 43 को प्लेस कर दूंगा। अब बताइए क्लियर है? Yes, sir, it's clear. Harshita, Okay. are you clear? Harshita and Yash? Yes, sir, it's clear. Yeah, now we are picking the next value that is the 79. So 79 it should be map at 0. So 79 को यहाँ रख दिया, फ्री है। Sir, प्रियांशी is saying कि अगर 5 वाला empty नहीं होता तो in that case अगर देखिए एम्प्टी नहीं होता तो देख लीजिए बिल्कुल सिंपल है, आप आई की वैल्यू बढ़ाती रहती। सपोज अगर 5 एम्प्टी नहीं होता तो मैं यहाँ क्या रखता, मैं रखता 4 प्लस आई की वैल्यू अब मैं कर देता 2 एंड मल्टीप्लाई हैश फंक्शन तो सेम ही है 43 की के लिए, तो ये हो जाता मेरा मॉड 10। ठीक है, तो ये कहां हम चेक करते, 6 पे चेक करते। अगर 6 नहीं होता तो 7 पे चेक करते। ये देखिए लिनियरली क्यों बढ़ रहा, क्योंकि यहाँ 43 की इस तरीके से आ गई, बट इन जनरल आपको निकालना पड़ेगा कि किस पोजीशन पे वो मैप होगा। ये क्लियर है अब? I hope it's clear to you now, Priyanshi. Please write a quick yes if it is clear to you. Yes, sir, it's clear to her. You can proceed. Okay. After that, see 79 we placed. After that 46. So 46 we have to map at 7. So 7 पे 46 को मुझे place करना है. So here it is having 46. After that 72. 72 को कहाँ जाना है, 3 पे जाना है, तो 3 भी वैकेंट है, यहाँ कर दिया। अब देखिए इस वाली की इसके लिए ध्यान से देखिएगा 54 के लिए, तो देखिए 54 जाना कहाँ पे था, और इससे पहले मैंने लिख लिया कि अभी तक जो हमारा कोलिजन है वो 1 हो चुका है। ठीक है, 1 हो चुका है। अब देखिए 54 कहाँ आना था, 54 आना था 5 पे, बट देखिए 5 तो फ्री नहीं है, तो मैं क्या करूंगा 54 के लिए दूसरा हैश फंक्शन निकालूंगा। ठीक है, सो h2 ऑफ 54, सेकंड हैश फंक्शन 54 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा k-2।
सो मीन्स हो जाएगा 54 माइनस 2 मॉड 10। सो 52 मॉड 10 मीन्स ये आ जाएगा 2। अब देखिए एच डैश के जब आप निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा 5 प्लस 1 इंटू टू। 1 इंटू टू क्यों किया? क्योंकि फर्स्ट टाइम वैल्यू ऑफ आई क्या है 1। तो देखिए क्या आ जाएगा 7। तो देखिए यहाँ 5 पे प्लेस नहीं हो रहा था तो आपने 7 पे चेक किया और कोलिजन आपका 1 से बढ़ गया। ठीक है, कोलिजन आपका 1 से बढ़ गया और कोलिजन जब आपका बढ़ा तो आपने देखा जो ये नेक्स्ट प्लेस है ये भी एम्प्टी नहीं है। देखिए 46 यहाँ प्लेस्ड है। तो मैं क्या करूंगा यहाँ वैल्यू ऑफ आई को फिर से बढ़ा दूंगा। अब ये क्या हो जाएगा 5 प्लस 2 इंटू टू, तो क्या आ जाएगा 9 एंड 9 मॉड 10 क्या आ जाएगा 9। तो 9 पोजीशन फ्री है, 9 पोजीशन फ्री है तो हम यहाँ 54 रखेंगे और ये नेक्स्ट पोजीशन पे भी यहाँ कोलिजन आ रहा था तो नंबर ऑफ कोलिजन यहाँ 1 से और बढ़ जाएगा। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन 3 है, यहाँ टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इज 2 एंड हियर द टोटल नंबर ऑफ कोलिजन इज 1। तो अब जल्दी से आंसर बताइए कौन सा ऑप्शन सही है और मुझे सभी से आंसर चाहिए सही। So कौन सा ऑप्शन students सही write हुआ? down. Now all are saying it's B. इट्स बी। तो देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा लेंथी था बट इसमें सारी ही चीजें कवर हैं। तो आई एम वेटिंग फॉर फ्यू मोर सेकेंड। अगर इस अप्रोच में किसी को भी कोई डाउट हो सो यू कैन आस्क। Students, probably this was our last class. So please, अगर आपको कहीं भी कोई डाउट फील हो रहा है तो feel free to ask your doubts. Write your doubts in the chat box. Because in InfyTQ such kind of questions were asked. यस, हैशिंग के आते हैं और अगर आप इजी क्वेश्चन भी गलत करेंगे सो इट विल लूज योर कॉन्फिडेंस आल्सो। इजी क्वेश्चन तो मुझे गलत करना ही नहीं है। एंड इन द लास्ट InfyTQ फॉर 2020 इसी तरीके के क्वेश्चंस हैशिंग में आए हुए हैं और हैशिंग का एक क्वेश्चन तो कंपल्सरीली आता ही आता है। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो सर राइट नाउ नो डाउट रिसीव्ड सो वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, देन इट इज वेरी गुड सो वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट वन। या सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको बताइए, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड इसके बाद बताइए कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। So Karsh is the first one to write the answer. It is D. And now 4 or 5 students repeatedly saying it's D. So right now all of the students are saying D is the answer, but very few reply we get. Students are saying B or D? I'm D, not getting... D for Delhi. Delhi. Okay, D. Delhi. Okay. So let's see which option is correct and how we will check it. So देखिए आपको एक हैश टेबल गिवन है ऑफ लेंथ 10 एंड इट इज सेइंग इट इज यूजेस ओपन एड्रेसिंग एंड ओपन एड्रेसिंग में 3 मेथड्स होते हैं, लीनियर, प्रोबिंग एंड क्वाड्रेटिक। तो कौन सा मेथड आपको यूज करना है? लीनियर प्रोबिंग। लीनियर प्रोबिंग सबसे इजी है एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू विल सी बाय यूजिंग दिस लीनियर प्रोबिंग ओनली विद द हैश फंक्शन इज गिवन k + 2 mod 10। अब इसने पूछा है कि हैश टेबल 7 वैल्यूज को इंसर्ट करने के बाद ये आ गई है तो आपका इंसर्शन का ऑर्डर क्या हुआ होगा। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। तो अगर ये मेरा ऑर्डर है, मैं चेक कर रहा हूं ऑप्शन को 1 by 1। ए पार्ट हुआ होता तो देखिए ए में क्या है 60 है तो 60 + 2 होता 62 और 62 का हम मॉड ले लेते 10 के साथ। तो ये कहां मैप होना चाहिए था? ये मैप होना चाहिए था 2 पे। तो देखिए 2 पे क्या 60 मैप है? नहीं। तो इसके बाद मैं इसमें फर्दर चेक नहीं करूंगा, डायरेक्टली आई कैन से दिस कैन नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद देखिए मैं बी ऑप्शन को पिक कर रहा हूं। बी ऑप्शन में क्या है 32। तो 32 है तो 32 + 2 ये हो जाता 34 एंड यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 4। तो 32 अगर ये ऑप्शन होता तो 32 कहां प्लेस होना चाहिए 4 पे। तो हाँ भाई 32 तो देखिए 4 पे प्लेस है तो ये ऑर्डर तो करेक्ट है। अब इसके बाद अगला देखें नेक्स्ट 80। सो 80 + 2 82 एंड 82 mod 10 मींस 2। सो 80 जो है वो 2 पे मैप होना चाहिए था। तो देखिए क्या जो 2 है उस पे 80 मैप है? नहीं। तो मैं इसके बाद चेक नहीं करूंगा, दिस ऑप्शन इज ऑल्सो रॉन्ग। लेट्स चेक फॉर दी सी पार्ट। तो सी पार्ट में देखिए क्या है 20 है तो 20 कहां मैप होना था? 20 मैप होना था 20 + 2। सो ये आ जाता है 2 पे। तो क्या 2 पे 20 है? यस 2 पे 20 है। नेक्स्ट वैल्यू मैंने चेक करी तो 60 + 2 62 तो हैश फंक्शन इज 2। तो देखिए 2 पे मैप होना था बट ये गिवन है कि कोलिजन हो रहा है बिकॉज 2 पे ऑलरेडी एक वैल्यू प्रेजेंट है तो 2 की जगह आपने इसको 3 पे प्लेस कर दिया। तो यस 60 के लिए भी ये सही है। अब चेक करते हैं 32 के लिए। तो 32 सो 32 + 2 34 एंड यूनिट प्लेस पे क्या आ जाता है और इसका हैश फंक्शन क्या आ जाता है 4। तो 32 क्या 4 पे प्लेस है? यस आप देख सकते हैं 4 पे क्या प्लेस है 32, इसके लिए भी सही है। अब मैंने देखा ये वाली वैल्यू 80 तो 80 देखिए कहां प्लेस होनी चाहिए थी? 80 प्लेस होनी चाहिए थी 80 + 2 इसका हैश फंक्शन क्या आ जाता 80 + 2 सो हैश फंक्शन इज 2।
तो ये प्लेस होना चाहिए था 2 पे, बट आप देख रहे हैं 2 3 4 सब तो ऑक्युपाइड है, तो इसकी जो बेस्ट जो नेक्स्ट लोकेशन बची क्या है, 5 ही बची, तो यस ये 5 पे प्लेस्ड है, यहां तक सही है। इसके बाद मैंने देखा 96, सो 96 प्लस 2 क्या होना चाहिए, 98, सो 98 मींस 96 प्लेस होना चाहिए था 8 पे, तो देखिए 8 पे ये नहीं प्लेस्ड है, 8 पे इसके आगे वाली वैल्यू कोई प्लेस है, तो मैं इसके बाद चेक नहीं करूंगा एंड आई विल सी कि ये भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। तो 3 ऑप्शन गलत, राइट, वी आर हैविंग 3 रॉन्ग ऑप्शन, सो विच वन इज द करेक्ट ऑप्शन, सो इसका करेक्ट ऑप्शन आप डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, आपका डी पार्ट हो जाएगा। इसको एक बार चेक भी कर लेते हैं कि क्या ये सही है कि नहीं। तो देखिए 32 कहाँ मैप होना चाहिए था, तो 32 प्लस 2 34, तो यूनिट प्लेस पे क्या रहा 4, तो 32 क्या 4 पे मैप है, यस 4 पे मैप हो गया। 20 कहाँ आना चाहिए था, सो 20 प्लस 2 22 एंड यूनिट प्लेस पे क्या रहा है 2, सो 2 पे 20 आना चाहिए था, यस ये भी मैप हो गया। 60, सो 60 प्लस 2, ठीक है 2 आ गया, तो 2 पे तो ऑलरेडी ये था, तो आपने उसको 3 पे प्लेस करना होगा, यस 3 पे है। आफ्टर दैट 80, अब देखिए 80 आना चाहिए था 80 प्लस 2 82 पे, 82 मींस 2 पे आना चाहिए था, बट देखिए 2 3 4 इससे पहले ऑलरेडी ऑक्युपाइड है, तो यस ये 5 पे आना चाहिए था बाय यूजिंग द लीनियर प्रोबिंग। देन 66, सो 66 प्लस 2 68, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ जाएगा, हैश फंक्शन 8, तो यस 66 कहां प्लेस होना चाहिए था, 8 पे है। 96 कहां प्लेस होना चाहिए था, तो 96 प्लस 2 98, तो ये प्लेस होना चाहिए था 8 पे, बट 8 पे ऑलरेडी कुछ है, तो ये उसके आगे वाली लोकेशन पे जाएगा, यस यहां तक भी सही है। एंड 93, सो 93 प्लस 2, सो 95, सो रिमाइंडर और हैश फंक्शन इज 5, तो 5 पे प्लेस होना चाहिए था, बट 5 पे ऑलरेडी है, सो इट शुड बी प्लेस्ड एट 6। तो देखिए इसमें एक ही ऑप्शन हमारा करेक्ट बचा है, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। तो ये क्लियर है सभी को, जल्दी से बताइए। Quickly write yes in the chat box if it is clear to all of you. Yes, sir, it's clear. Okay, so now let's move to the next question. So इस क्वेश्चन को पढ़िए और जल्दी से बताइए क्या है इसका ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इस तरीके का क्वेश्चन आपको लोगों को क्लास में भी बताया गया है। Sir, the students are saying C is the answer, but only 5 students replied it. Rest of the student, please reply fast. Students are saying C. Yes, sir. All are Okay. saying C is the answer. Okay, so let's see the solution. So see, in this case the sequence is given to us, so sequence is 1 8, or it is directly written here, so directly I am taking, so देखिए शॉर्ट स्टोर्ड 3 टेक्निक से आपको स्टोर्ड करनी है एंड आपको बताना है कि नंबर ऑफ कंपैरिजन फॉर सर्चिंग 28। तो देखिए अगर आप इसी स्टाइल में, फर्स्ट वाला मैं ले रहा हूं, स्टोर्ड एज इट इज इन द एरे, मींस जिसमें आपको गिवन है इसी सीक्वेंस में इंसर्ट करना है। तो देखिए रैंडम सीक्वेंस है, तो रैंडम सीक्वेंस हो तो आप क्या करेंगे, आप लीनियर सर्च लगाएंगे, तो देखिए नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हो जाएंगे, 1 2 3 देन 4 5 6 7 8 एंड 9। तो देखिए 9 वाला जो पहला ऑप्शन होगा वो 9 वाला होगा, ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन हो नहीं सकता, ठीक है। और देखिए एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में एलिमिनेशन मेथड आपको आना चाहिए, ठीक है, कि किस तरीके से जो गलत ऑप्शन है उसको हम लोग इग्नोर कर सकते हैं। इसके बाद देखिए स्टोर्ड इन दी शॉर्टेड ऑर्डर, ठीक है, अब इसका शॉर्टेड ऑर्डर में स्टोर करते हैं। तो देखिए मैं स्टोर कर रहा हूं शॉर्टेड ऑर्डर में, ध्यान से देखिएगा, इंडेक्सेस सपोज यहां से है इस तरीके से 0 1 9 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, ये इंडेक्सेस है एंड यहां मैं कीज को स्टोर कर रहा हूं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 के बाद नेक्स्ट वैल्यू इज 8, आफ्टर 8 वी आर हैविंग 12, देन 13, देन 16, देन 17, and please check if any value I am missing, then 28, then 32 and 64। तो देखिए मैंने क्या कर दिया, स्टोर कर दिया शॉर्टेड ऑर्डर में। तो देखिए शॉर्टेड ऑर्डर में अगर एरे है तो मैं देखिए क्या करूंगा, मैं लगा दूंगा बाइनरी सर्च, ठीक है, बाइनरी सर्च, क्यों, क्योंकि मुझे कंपैरिजन को रिड्यूस करना है और इसमें गिवन है यूजिंग द एप्रोप्रिएट सर्च स्टाइल, एप्रोप्रिएट सर्च एल्गोरिथम। तो मुझे पता है अगर शॉर्टेड है तो उसके केस में बाइनरी सर्च लगा रहा हूं। देखिए बाइनरी सर्च में क्या होता है, मुझे मिड निकालना पड़ता है, तो मिड देखिए इसका क्या आ जाएगा, फर्स्ट कंपैरिजन आपका मिड से होगा, तो हो जाएगा 0 + 8/2, तो मींस फर्स्ट कंपैरिजन होगा जो 4 पे वैल्यू है, तो फर्स्ट कंपैरिजन आपका हो गया, ठीक है, और जो 4 पे वैल्यू है वो छोटी मिली, तो
तो जब 4 पे वैल्यू छोटी मिली तो आपको क्या करना होता है, आपको इस राइट हैंड साइड में सर्च करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जिसको आप सर्च कर रहे हैं 28 वो बड़ा है, तो इस साइड में सर्च करने के लिए आप क्या करेंगे, जो LB है उसको एक बढ़ा देंगे मिड प्लस 1, सो LB हो जाएगा मिड प्लस 1 मींस 4 प्लस 1 और UB वही रहेगा, UB इज 8। यहाँ क्या था, इनिशियल के लिए LB इज 0 एंड UB इज 8। अब देखिए क्या आ जाएगा, LB UB क्या आ गए, सॉरी इट विल बी 5, सो 4 प्लस 1 5। सो अब हम देखिए मिड निकालेंगे, सो मिड विल बी 5 प्लस 8 बाई 2, सो इट विल बी 13 बाई 2। सो देखिए कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्या इंडेक्स पोजीशन 6 पे 26 है? यस, मुझे मिल गया। तो देखिए एक कंपैरिजन इससे हुआ इंडेक्स पोजीशन 4 वाली वैल्यू से, और दूसरा कंपैरिजन इस पे हुआ। तो जो देखिए सेकंड हमारा ऑप्शन है वो क्या होगा, 2। तो बाकी किसी में नहीं है तो मैं चेक नहीं करूंगा एंड डायरेक्टली आई कैन से। आप अगर चाहें आप चेक भी कर सकते हैं, बट जैसा मैंने बताया कि एमसीक्यू टाइप में डायरेक्टली वी कैन एलिमिनेट द अदर आंसर्स एंड डायरेक्टली वी कैन से इट्स करेक्ट ऑप्शन इज ए। तो ये क्लियर है इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, बिकॉज काफी बच्चों ने सी बताया था। ये क्लियर है, ए है इसका ऑप्शन। इज इट क्लियर? जी, इस तरीके की मिस्टेक्स हमसे हो जाती है जब हम लोग ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते हैं। सो इन द एट द टाइम ऑफ एग्जाम यू शुड बी केयरफुल कि आपको किस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और क्या गिवन है। सो सर राइट नाउ इट्स क्लियर टू एवरीवन, वी कैन प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। या ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज आल्सो बेस्ड अपॉन दिस वन। ठीक है, जो अभी आपको थर्ड स्टोरेज स्टाइल थी उसी के बेसिस पे है। तो देखिए क्या गिवन है कि 9 अनसॉर्टेड कीज आपको गिवन है, डिस्क्राइब बिलो, और उनको स्टोर कैसे करना है इस स्टाइल से। ये स्टाइल क्या है, डिवीजन मॉडुलस हैश फंक्शन। ये आपको हैश फंक्शन मींस हैशिंग का यूज करके आपको स्टोर करना है। एंड कोलिजन आप कैसे रिजॉल्व कर रहे हैं, चैनिंग के थ्रू। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है कि जो हैश टेबल की कैपेसिटी है और टोटल लिंक्ड डेटा नोड्स कितने होंगे अगर ये जो 9 कीज है वो आपको स्टोर करनी है इन दिस स्टाइल। तो जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये तो ओरल क्वेश्चन है। Sir, only one student replied here. She said A is the answer. What about rest of the students? Quickly reply. Okay, so Aresha says it's B. Shubham says A. Utkart says A. What about तो rest of the students? बाकी स्टूडेंट्स भी फटाफट से रिप्लाई कीजिए. What is your answer? Sir, so we are getting the mixed sort of answer. Few are saying A and few are saying is B. ओके, तो चलिए अब ध्यान, या एनीवन इज आस्किंग समथिंग? No, sir, you Okay. can proceed to the Okay, solution. so you can see here the hash function is given as k mod 9। तो देखिए ध्यान से देखिए, जब भी इस तरीके का हैश फंक्शन आपको गिवन है, ठीक है, तो देखिए वैल्यूज ये क्या क्या जनरेट कर सकता है, की जो भी हो ये हमेशा वैल्यूज आएंगी 0 1 2 3 अप टू 8। जो इसकी टोटल वैल्यूज आएंगी वो 0 से 8 तक आएंगी, और 0 से 8 तक टोटल कितनी वैल्यूज है, 9। तो देखिए इसमें जो हमारा हैश टेबल होगा उसका साइज हो जाएगा 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8। क्योंकि आपने मॉडुलस हैश फंक्शन यूज किया है तो इसकी जो भी वैल्यू आएंगी क्या आएंगी, 0 से 8 के बीच में आएंगी। तो देखिए साइज ऑफ हैश टेबल क्या आ जाएगा, साइज ऑफ हैश टेबल आ जाएगा 9। तो 10 वाला ऑप्शन नहीं होगा, जो साइज ऑफ हैश टेबल है वो 9 आ जाएगा। अब इसके बाद पूछा है टोटल लिंक्ड डेटा नोड। ठीक है, तो आप किसी भी 9 कीज के लिए कर लीजिएगा। कुछ कीज ऐसी होंगी जो मान लीजिए इस लोकेशन पे मैप हो, ये चैनिंग मेथड यूज किया है इसने, ये लिखा है यूजिंग चैनिंग। चैनिंग में क्या होता है, हम एक नोड बना देते हैं और उस नोड का एड्रेस यहाँ स्टोर कर देते हैं। तो देखिए जब 9 कीज हैं तो स्टोर करने के लिए कितने 9 डेटा नोड्स चाहिए होंगे, तो टोटल डेटा नोड्स कितने हो जाएंगे, दैट विल आल्सो बी 9। तो जैसा मैंने बताया था ये ओरल है, ठीक है, ये क्वेश्चन ओरल सॉल्व हो जाएगा। तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज बी पार्ट। तो ये क्लियर है सभी को? Yes, sir, जल्दी student बताइए। are saying yes. ओके, सो इफ इट इज क्लियर, सो यस दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसको सही बताइएगा इसका आंसर। जो भी मैंने पीछे बताया उसी के बेसिस पे है, चैनिंग के बेसिस पे है। कोलिजन इज रिजॉल्व्ड यूजिंग द चैनिंग। तो जल्दी से बताइए। Sir, student are saying A, but 2 or 3 student are saying D is the answer. Again, we are receiving mixed sort of answer. If you are saying A, if you are saying D. ओके, तो चलिए इसको देखिए चेक करते हैं। मैंने पहले कीज ले ली 15 21 29 82 20 37 19 17 एंड 10।
तो देखिए मैं पहले क्या कर रहा हूँ, इन सबको +2 कर दे रहा हूँ, तो +2 करना है, देन सो इट विल बिकम 17, ये आ जाएगा मेरा 23, देन 31, देन 84, देन 22, 39, 21, 19 एंड 12। ये क्यों किया है, क्योंकि जो हैश फंक्शन है वो k+2 है, तो जितनी भी कीज k थी उनको +2 कर दिया। अब देखिए इसका मॉडुलस लेना है, तो देखिए बस यही इसमें है, थोड़ा कैलकुलेशन में यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ रहा, तो ये अगर आपने सही कर लिया देन डेफिनेटली यू विल गेट द आंसर। तो देखिए मैं इसको लिख दे रहा हूं, सो आप इसको चेक करिएगा, इट विल बी 7, इन दिस केस इट इज 5, इन दिस केस इट इज 4, in this case it is 3, in this case it is 4, then here it is 3, here it is 3, here it is 9 to 18 and it is 1 and then here it is 3. so check कर लीजिएगा एक बार। so this is the hash function of these keys। अब देखिए इसमें पूछा है मिनिमम चेन लेंथ, तो देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूं, हैश टेबल एक बना ले रहा हूं। so 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। अब देखिए इसमें क्या पूछा है, मिनिमम चेन लेंथ। तो देखिए मिनिमम चेन लेंथ के लिए आपको चेनिंग में करते क्या है, जैसे 15 है तो 15 आपको कहां प्लेस करना है, 7 पे। तो मैं क्या करूंगा, यहां एक नोड बनाऊंगा जिसपे मैं 15 कर दूंगा एंड इसका जो एड्रेस है वो 7 पे स्टोर कर दूंगा। अगर सपोज 7 पे कोई और वैल्यू आ रही होती तो मैं इसके आगे या पीछे ऐड कर देता, डिपेंड्स कि एज ए हेड आप इंसर्ट कर रहे हैं या एज ए टेल कर रहे हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन को भी आपको ज्यादा सॉल्व नहीं करना है, आप इसमें देख सकते हैं इसमें कई सारी इंडेक्स पोजीशन ऐसी हैं। फॉर एग्जांपल जैसे इंडेक्स पोजीशन 2 है, तो देखिए 2 पे कोई भी हैश फंक्शन मैप नहीं हो रहा, मींस देयर इज नो एनी हैश फंक्शन हुज वैल्यू इज 2। अदर भी हो सकते हैं लाइक 6 भी है, बट आप 2 का एग्जांपल ले लीजिए। तो देखिए 2 पे कोई भी जो हैश फंक्शन है जनरेट नहीं हुआ, तो हैश फंक्शन जनरेट नहीं हुआ मतलब 2 पे किसी भी जो डेटा नोड है उसका एड्रेस नहीं होगा, तो इसलिए मिनिमम चेन लेंथ क्या आ जाएगी, मिनिमम चेन लेंथ आ जाएगी आपकी 0। ये क्लियर है या मैं पूरा सॉल्व करके बताऊं, जल्दी से बताइए। लाइक 21 आई हैव टू प्लेस टू दी 5, सो 21 आपको यहां प्लेस करना था, जल्दी से बताइए क्लियर है। 29 इट शुड बी प्लेस्ड एट 4। Yes, sir, it's clear. तो कई सारी पोजीशंस ऐसी हैं जिसमें आपको कोई भी डेटा नोड्स नहीं मिलेगा, सो दैट्स व्हाई मिनिमम चेन लेंथ इज 0। और आई गेस इसी क्वेश्चन के लिए मैक्सिमम भी पूछा गया है, तो आप बताइए इसका मैक्सिमम का आंसर क्या है, या वैल्यूज आर सेम, मैक्सिमम बताइए। तो देखिए मैक्सिमम आपको देखना है कितनी चेन लेंथ जा सकती है, तो मैक्सिमम के लिए अगर मैं 4 को देखूं तो 4 देखिए कहां कहां आ रहा है, 1 2, एंड अगर मैं 3 के लिए देखूंगा तो 3 देखिए 1 2 3 4। तो देखिए अगर आप 3 पे प्लेस करेंगे सो दैट विल बी दी मैक्सिमम वन। आप इसी जगह इस स्लाइड में देख सकते हैं कि 3 पे कौन कौन से जा रहे हैं। 3 पे जा रहा है 82, क्योंकि मुझे मैक्सिमम चाहिए, तो मैंने देख लिया कि मैक्सिमम वैल्यू 3 की रिपीट हो रही है और मैंने उसको ड्रॉ कर दिया। इसके बाद ये आ जाएगा 37, आफ्टर दैट इट इज 19 एंड आफ्टर दैट इट इज 10। तो ये क्लियर है सभी को कि इसका आंसर क्या आएगा, जो मैक्सिमम चेन लेंथ है इसका आंसर आ जाएगा 4। ये क्लियर है सभी को, जल्दी बताइए, बिकॉज की सेम थी। क्या ओके, सो नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आफ्टर दैट वी विल गो फॉर द अटेंडेंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देखेंगे और उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन आपको देखेंगे अटेंडेंस के बाद। तो देखिए क्या गिवन है, ये गिवन है कुछ कीज आपको गिवन है। सो कीज आर दिस वन and what it is saying it is inserted to hash table with the hash function is this one k mod 5 using the two approach। एक अप्रोच है चेनिंग, तो चेनिंग में जैसा मैंने बताया था कि हम जो डेटा नोड्स बनाते चले जाते हैं और उनका एड्रेस हम क्या करते हैं, स्टोर करते चले जाते हैं हैश टेबल में। और इंसर्शन देखिए इसमें लिखा है हेड पोजीशन पे करना है। तो पहले मैं फर्स्ट अप्रोच देख लेता हूं, तो उससे पहले व्हाट आई एम डूइंग, मैं देखिए सबके हैश फंक्शन यहाँ टॉप में लिख दे रहा हूं क्योंकि बहुत इजी है, मॉडुलस 5 करना है, तो इसका हैश फंक्शन 4 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, हियर इट विल बी 1, हियर इट विल बी 3 अगेन, हियर इट विल बी 0, हियर इट विल बी 2, हियर इट विल बी 1 and here it will be 3. So first of all here what I am writing, I am writing corresponding hash function. So 4031 30 213, एक बार चेक कर लीजिएगा। So this is the hash function।
अब देखिए मुझे चैनिंग करनी है, तो देखिए जो हैश फंक्शन है वो गिवन है k mod 5, सो मैंने क्या कर दिया 0 1 2 3 4, जो इंडेक्सेस होंगी वो 0 से 4 तक आएंगी। तो देखिए 64 को मुझे कहाँ मैप करना है, 4 पे। तो देखिए मैं थोड़ा आगे से मैप कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि अगर कोई दूसरी वैल्यू 4 पे आएगी तो मुझे एज ए हेड करना है, तो मैं उसके पहले इंसर्ट कर दूंगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, 64 को मैंने यहां प्लेस कर दिया। आफ्टर दैट 65 कहां जाना है, 0 पे, तो मैंने यहां बना लिया, मैं कुछ गैप देके बना रहा हूं 65। आफ्टर दैट 98 कहां जाना है, 3 पे, सो यहां बना दिया मैंने 98। आफ्टर दैट 21 कहां जाना है, 1 पे, सो दिस इज 1, हियर आई एम राइटिंग 20, हियर आई एम राइटिंग 21। ओके, आफ्टर दैट 33 को कहा जाना है, 3 पे। तो देखिए मैंने यहाँ गैप इसीलिए छोड़ा था क्योंकि एज ए हेड नोट करना है, तो अब मैंने 33 को यहाँ प्लेस कर दिया इससे पहले। आफ्टर दैट 15, 33 is 3, yeah, after that 15 it should be map at 0, so 15 I am placing here. After that 17 it should be map at 2, so here I am writing 15, and after that 17, just a minute, 15 was already done, just a minute, actually here it is 17, yeah, here only calculation you have to remember, 15 I already placed, after that 17, so it should be map at 2, so here it is 17, after that 26, so it should be map at 1, so here it is 26, and after that 88, so 88 it should be map at 3, so this is our 88, and after that what I am doing, I am connecting like this, so as a head node we are connecting. Okay, so this is the corresponding table if we are using the chaining, and in the chaining we are inserting at the head position. So what it is asking, it is asking where the 15 will occupy. तो बताइए देखिए 15 कहाँ ऑक्युपाई हो रहा है, तो 15 ऑक्युपाई हो रहा है इंडेक्स पोजीशन 0 पे। तो देखिए फर्स्ट के लिए तो आंसर सभी में ही 0 है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेकंड अप्रोच भी चेक करनी पड़ेगी। अब देखिए सेकंड अप्रोच में क्या कह रहा है, व्हाट इट इज सेइंग 0 1 2 3 4। सेकंड अप्रोच ध्यान से देखिएगा, सेकंड अप्रोच में कह रहा है कि मुझे डबल हैशिंग अंटिल द टेबल इज फिल्ड फॉलोड बाय चैनिंग। ठीक है, तो मुझे डबल हैशिंग यूज करनी है जब तक टेबल फिल्ड ना हो, और जब फिल्ड हो जाए तब चैनिंग यूज करनी है। और डबल हैशिंग के केस में देखिए जो सेकंड हैश फंक्शन है, इट इज गिवन टू अस k-2 mod 5। तो अब देखिए इसको कर लेते हैं किस तरीके से, फिर से जल्दी जल्दी कर लेते हैं। 64 को कहां प्लेस करना है, 4 पे, सो 64 आई एम राइटिंग हियर 64, then 65 0 पे, so 65 should be here. After that 98 it should be at 3, so here it is 98. अब देखिए 21 it should be at 1, so 21 it should be at 1, so यहाँ I am placing 21. After that 33, अब देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, इस वाले को 33 देखिए कहां प्लेस करना था, 3 पे, बट अभी मैं डायरेक्टली चैनिंग नहीं करूंगा, क्यों, क्योंकि ये गिवन है कि जब तक टेबल फिल्ड नहीं हो तब तक वी कैन नॉट यूज दी चैनिंग, सो अंटिल द टेबल इज नॉट फिल्ड, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल यूज दी डबल हैशिंग इन द केस ऑफ द कोलिजन। सो डबल हैशिंग में क्या करेंगे, 33 के लिए वी विल कैलकुलेट दी सेकंड हैश फंक्शन। सो सेकंड हैश फंक्शन क्या हो जाएगा 33 के लिए, ये हो जाएगा 33 माइनस 2 mod 5, सो ये आ जाएगा 31 mod 5, सो ये क्या आ जाएगा 1। तो मतलब अगर 3 पे नहीं है तो मैं 4 पे देखूंगा, 4 पे नहीं है, 0 पे, 1 पे, 2 पे, तो एट द एंड मुझे जो फ्री लोकेशन मिलेगी वो यहां मिलेगी, तो 33 को मैं यहां इंसर्ट करूंगा। ठीक है, तो पहले यहां बताइए, मैं एक पॉज ले रहा हूं, ये क्लियर है सभी को, 33 वाई वी आर इंसर्टिंग हियर। So students, tell me fast, it is clear to everyone? Write yes or clear, whatever suitable to you. Quickly reply. Yes sir, it's clear to the students. Clear है, okay. After that what we have to do, yeah, now you can see the table is filled, क्यों, क्योंकि सबके एड्रेस अब आ गए होते हैं यहाँ टेबल पे, तो अब टेबल फिल्ड हो गई, तो नेक्स्ट वैल्यू क्या है 15, सो 15 मैं यहाँ स्टोर कर दूंगा 15। आफ्टर दैट 17 इट शुड बी मैप एट 2,
17 will be here, then 26 it should be mapped at 1, so 26, then 88 it is mapped at 3, so here it is 88. ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछा था, 15 कहाँ ऑक्युपाई करेगा, तो देखिए इस अप्रोच में भी जो 15 है दैट इज ऑक्युपाइंग इट्स प्लेस एट इंडेक्स पोजीशन 0, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है इट इज दिस वन, बी पार्ट, 0 एंड 0। तो जल्दी से बताइए सभी को क्लियर है? Yes sir, it is clear. Student Okay, so ma'am you can take the attendance. After that जो next question है वो इसी पे ही based है, so it will take hardly 1 minute or 2 minutes. Okay, so students quickly write your roll number in the chat box. Yeah, 1 minute, please writing your roll number first. Yes sir, attendance is done. Now you can proceed to the last question. ओके तो अगर जिनको ये समझ में आ गया है ये टेबल का स्ट्रक्चर, या आप फोटो भी ले सकते हैं, आई एम जस्ट वेटिंग, और उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर अब सभी लोग बताइए विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन। इसमें अब क्या पूछा है कि सेम ही क्वेश्चन है, इसमें पूछा है अगर आप 98 को सर्च कर रहे हैं दोनों अप्रोचेस से तो कितने कंपैरिजन आप करेंगे, तो जल्दी से बताइए आंसर क्या है, 98 के लिए आंसर आपका क्या आएगा, जल्दी से बताइए। Okay, so student are saying B. स्टूडेंट्स आर सेइंग बी पार्ट, यस। तो देखिए बिल्कुल सिंपल है, फर्स्ट अप्रोच में आप देख सकते हैं 98 के लिए आप क्या करेंगे, आप सो 98 के लिए आपने हैश फंक्शन देखा था 3, सो 3 पे आप देखेंगे तो नंबर ऑफ कंपैरिजन विल बी हाउ मेनी, 1 2 3, सो फर्स्ट अप्रोच में 3 है। सेकंड अप्रोच में आपने देखा 98, वी हैव टू चेक फॉर 98 राइट, यस 98, so in the second approach 3 पे आएंगे 1 comparison and 2 comparison, so in the first case we have to do 3 comparison and second case 2 comparison, so its correct option is option D. So it is clear to everyone, जल्दी से बताइए। Yes sir, it's clear. Okay, so ma'am now it is done from my side. Okay, Students को student. नंबर मेरा WhatsApp दे दीजिएगा in case Okay. students having any kind of doubt either in the DS or in Java programming, so you can WhatsApp me anytime. Okay student, in case of any doubt